Hello everyone, welcome to HDM IAS. I hope you are doing well. So guys, we are continuing this 10-minute series. Previously we have talked about the money, right? So we have covered the basic concepts of money, and today we are going to talk about the monetary policy. Now again, a very important topic. If you just see our booklet on the economy, you will find that most of the question in the economy every year, like continuously question is being asked from this particular topic. Okay, so that is why this particular topic is very important. So let's not waste time and let's delve deep into this particular topic. So if you just see or talked about the monetary policy, let me just first tell you about this. Now monetary policy is the policy of the RBI. ये हम सभी को पता है कि RBI इसको implement करता है. Now if you just look into the broad framework, so it's been implemented by the central bank. We have this it is a macroeconomic policy framework. एक large level पे economy को influence करता है. That is why it is called macroeconomic. Now see, the basic idea of this policy of the RBI is to control the money supply in the economy with the two objectives. The very first objective we have is the price stability, and on the other hand to boost the growth. ठीक है, दोनों को इनको देखना है. दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग इज द प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड थिंग इज द ग्रोथ. नाउ फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी वी हैव दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. Right, so for this inflation targeting framework we are going to look into CPI. So the RBI is going to take into CPI into consideration, and we have this band that is 4 plus minus 2. दैट मीन्स रेंज क्या है 2 to 6%, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमारे पास इन्फ्लेशन होना चाहिए. अगर 3 क्वार्टर्स में सपोज कीजिए कि ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है अगर मिस होता है, देन द RBI हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रीज़न दैट व्हाई दिस inflation target has been breached and what are the future course of action. Clear? So that is the agenda we have under this inflation targeting framework. Now who is going to basically look into this whole policy? अब देखिए पूरा RBI उसके ऊपर काम नहीं करता है. We have a dedicated committee which was formed after the recommendation of Urjit Patel committee. So we have this monetary policy committee for this, and this is a statutory committee which is formed under RBI Act 1934 and it is operated by the RBI. Right, इसके जो चेयरमैन होंगे that would be the RBI governor, and it's a 6-member body. Right, 6-member body. अब देखिए नेक्स्ट वी हैव इज द टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब देखिए दो तरीके की होती है. द वेरी फर्स्ट वी हैव इज द एक्सपेंशनरी और अकोमोडेटिव और डोविश. देखिए दोनों अलग अलग इसी के ही नाम है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का. एंड इन दिस सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज दिस इन दिस सिनेरियो व्हेन देयर इज अ स्लो डाउन, व्हेन देयर इज अ रिसेशन एंड और देयर इज अ डिफ्लेशन. राइट, यानी कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है. हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1-2% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी नीचे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि चीज़ें और ज़्यादा सस्ती होती चली जा रही हैं महंगी होने की जगह. सो फॉर इन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम RBI का क्या रहेगा कि हमें रिसेशन को कंट्रोल करना है. वी नीड टू इंक्रीज दी ग्रोथ, वी नीड टू बूस्ट दी ग्रोथ. So two objectives we are going to have under this particular policy, that is boost growth and increase the demand. क्योंकि दोनों ही हमारे किसको GDP को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट. So what RBI is going to do, they are going to decrease this repo rate. राइट, RBI इज गोइंग टू डिक्रीज द रेपो रेट एंड डिक्रीज दी CRR और SLR, यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करेगा और रेपो रेट को कम करेगा. अब देखिए इससे होगा क्या कि दैट सपोज कि ये बैंक है हमारे पास और बैंक के पास ये जो स्क्वायर है दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी दे हैव. प्रीवियसली दे हैव टू सेट असाइड सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ CRR और SLR. ठीक है, तो ये पूरा पैसा तो ब्लॉक ही हो जाता था जिसको ये कभी लैंड ही नहीं कर पाते थे. रिमेनिंग अमाउंट के ये जो लैंड करेंगे दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रेपो रेट. जितना रेपो रेट होगा उसी हिसाब से वो लोग उसको लैंड करेंगे. नाउ RBI हैज रिड्यूस दिस रेपो रेट एंड रिड्यूस दिस CRR SLR. दैट मीन्स नाउ banks have more money to lend and also at a lower interest rate so that people also move towards it. तो लोगों को भी लगेगा कि यार कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो चलो परचेज कर लेते हैं चीज़ों को. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू क्रिएट और जनरेट मोर एंड मोर डिमांड. सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. मनी सप्लाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही क्योंकि बैंक्स और ज़्यादा लैंड करेंगे. और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सपोज कीजिए जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, पीपल हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू generate demand for the credit. So cheaper borrowing is going to happen. Similarly in 2008 जब global financial crisis आया था तो even the Federal Reserve, which is the central bank of the US, they also lower down their interest rate to such an extent कि बहुत ज़्यादा cheaper money
वहाँ पर क्रिएट हो रहा था। एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि वो चीप मनी इंडिया में आ रहा था और इंडिया का स्टॉक मार्केट एज इट इज़ अपनी जगह पे था, ज़्यादा गिरा नहीं था। सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव जस्ट गिवन यू। अनदर एग्जाम्पल इंडिया के टर्म्स में देखेंगे तो पोस्ट कोविड रिस्पॉन्स। देखिए कोविड में हमें पता है कि हमारी जीडीपी कंट्रास्ट हो गई थी और बहुत बुरी तरीके से हुआ था, राइट। सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम आरबीआई हैज़ कट द रेपो रेट टू डायरेक्टली टू 4%। और ये बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि एकदम से आपने हम अपनी रेपो रेट को इतना डाउन कर दिया हो, यानी कि 4% पे। इम्पैक्ट क्या हुआ, लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर गई, फिर से डिमांड जनरेट हुई एंड दिस सपोर्ट दी रिकवरी। क्लियर। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेक्शनरी अगर आप देखेंगे, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम टाइटर या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ये कब यूज़ होती है, व्हेन देयर इज़ अ हाई इन्फ्लेशन एंड देयर इज़ अ ओवर हीटिंग, राइट। जीडीपी बहुत तेज़ी, ओवर हीटिंग का मतलब है कि जीडीपी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट 10%, 11%। अब देखिए इतनी तेज़ी से जीडीपी बढ़ना सस्टेनेबल नहीं होता क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर। सो आइडिया क्या है यहाँ पे, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस द डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यानी कि आरबीआई क्या करने वाला है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट एंड इंक्रीज द सीआरआर और एसएलआर सो दैट बैंक्स के पास कम पैसा हो टू लैंड टू द पीपल और लोग भी थोड़ा डिसइंसेंटिवाइज हों बाय लुकिंग इनटू हायर इंटरेस्ट रेट। क्लियर। सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द मनी सप्लाई in the economy and make expensive and make the borrowing expensive. So this type of monetary policy was used after the covid. So 2020-21 में तो हमने जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की थी, लेकिन उसका एक बैड इम्पैक्ट क्या हुआ कि बहुत जल्दी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। सो फॉर दैट आरबीआई हैज़ टू मेक और रेज दिस रेपो रेट बाय 250 बेसिस पॉइंट। ठीक है, एकदम से 2.5% से उन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया था। 250 बेसिस पॉइंट मीन्स 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। 100 बेसिस पॉइंट बीपीएस इज इक्वल्स टू 1%। ये नॉर्मल सा एक आई वुड से मैट्रिक है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। सो आरबीआई हैज रेज दिस टू 6.5%, राइट। बेसिकली व्हाट हैपेंड, डैम्पन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, एकदम से पूरी इकोनॉमी ओपन अप हुई थी और लोगों ने डिमांड जनरेट करना इंक्रीज कर दिया था। क्लियर। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ जस्ट लुक इनटू द समरी टेबल टू समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. So scenario, as you can see, for the expansionary monetary policy, recession और slowdown. कॉन्ट्रेक्शनरी के लिए हाई इन्फ्लेशन और ओवर हीटिंग के टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। गोल क्या है, बूस्ट ग्रोथ, हेयर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। देन एक्शन और टूल्स क्या यूज़ करने वाले हैं, डिक्रीज रेपो रेट और हेयर इंक्रीज रेपो रेट। मनी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होगी एक्सपेंशनरी में और कॉन्ट्रेक्शनरी में डिक्रीज हो जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंशनरी में चीपर रहेगी और कॉन्ट्रेक्शनरी में एक्सपेंसिव रहेगी। क्लियर। सो दिस इज हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली वर्क्स। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक्स था जो हमने आज इसको कवर किया है। इफ़ यू आर यूजिंग आर मिशन मिशन यूपीएससी, देन यू कैन डेफिनेटली लुक टूवर्ड्स द प्रीलिम्स फाइल। ठीक है। इवन जो मैंने गलती से आपको ईपीएफओ का भी बोला, उसके लिए भी हमने लास्ट टाइम मटेरियल निकाला था बाय द सेम नेम मिशन ईपीएफओ। तो अगर आपके पास उसकी भी फाइल है तो आप उसको भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज़ बीन discussed in detail in our PDF book, right, with all the new updates. So if you haven't subscribed for the Mission UPSC 2026, please look into it, because अगर आप उसका content देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा that how beautifully we have covered each and every topic in that. Clear guys? चलिए, so see you in the next class guys with some new topic and some interesting framework on the economy. Thank you guys.